آنے والے حالات پر یسوع کی پیشن گوئیاں۔ بچوں آئیں کچھ دہرائی کریں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یسوع کی آمد سے پہلے ظاہر ہونے والی علامتوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ کیا علامتیں تھیں؟ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، جنگیں، بیماریوں کی وبائیں پھیلیں گی، ایمانداروں کو ستایا جائے گا، اور اذیتیں دی جائیں گی۔ ان سب باتوں کے باوجود یسوع چاہتا ہے ہم نجات کی خوشخبری ساری دنیا میں پھیلائیں، تاکہ اس کے لوٹ آنے کی گھڑیاں قریب آ جائیں۔ آج ہم پھر اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یسوع نے دنیا کے انجام کے متعلق اور کن باتوں کا ذکر کیا۔ مسیحیوں کی اذیت رسانی کے علاوہ کس طرح کے دھوکہ باز اٹھ کھڑے ہوں گے؟ جھوٹے اور دھوکہ باز لوگوں کے ظہور کی پیشن گوئی۔ کئی جھوٹے فریبی خود کو مسیح کہیں گے۔ لوکا 21:8۔ اس نے کہا، خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ متی 24:26۔ پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا۔ بچوں، یسوع نے فرمایا، بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسیح کہیں گے اور دوسروں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کریں گے، مگر انہیں جھوٹے دعوے داروں کے ہاتھوں گمراہ نہ ہو جانا۔ بچوں دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے بہت سے نت نئے مذاہب بھی گڑھ لیے۔ یسوع نے ہمیں ان کی پیروی سے منع کیا۔ بچوں ہو سکتا ہے جھوٹے مسیح برے اعمال و کردار کے مالک نہ ہوں، ممکن ہے وہ بائبل کی تعلیمات سے خوب آراستہ ہوں، اچھے مبلغ ہوں، لوگوں کو متوجہ کر لینے میں مہارت رکھتے ہوں، اور شاید دوسروں سے محبت بھی رکھتے ہوں۔ بہت سے لوگ ان کی روحانیت اور صلاحیتیں دیکھ کر چھٹپٹا جائیں گے اور ان کی پیروی میں چل پڑیں گے، یہاں تک کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی پرستش بھی کرنے لگ جائیں گے۔ بچوں آپ وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہوتے جائیں گے، مگر یاد رکھیں اور خبردار رہیں کہ یسوع کے علاوہ کوئی اور ہرگز مسیح نہیں ہو سکتا۔ چاہے کسی کے پاس کتنی ہی زبردست قوتیں اور صلاحیتیں کیوں نہ ہوں، ان جھوٹوں کے علاوہ اور کون سے لوگ سر اٹھائیں گے؟ کئی جھوٹے فریبی خود کو خدا کا نبی کہیں گے۔ متی 24:11۔ اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے۔ متی 24:24-25۔ کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے۔ بچوں، یسوع نے کہا، وہ ہمیں بتا چکا ہے کہ دنیا کے آخری دنوں میں جھوٹے نبیوں
और मसीह होने का झूठा दावा करने वालों से हमारा सामना होगा, जो बहुत से लोगों को गुमराह कर लेंगे। क्योंकि वो जोरदार निशान और मोजज़े जाहिर करेंगे। बहुत से लोग उनके दाम में फंस जाएंगे। यहाँ तक के खुदा के लोग भी उलझ कर रह जाएंगे। चुनांचे यसू चाहता है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मत्ती 26 बाब 41 आयत। याद रखें, यसू हमारा दोस्त है। वो हमें आसमानी बाप की सोचों से आगाह करता रहेगा। चुनांचे अगर हम दुआ का दामन थामे रहें तब बड़े बड़े निशान और मोजज़े जाहिर करने वालों को हम बासानी जान लेंगे वो खुदा के खादिम हैं या झूठे मसीह और झूठे नबी। लेकिन अगर हमने खुदा के कलाम को ज़हन में ना रखा तब बाआसानी धोखा खा जाएंगे, ईमान खो बैठेंगे, यहाँ तक के जहन्नम में जा पड़ेंगे। मुखालफे मसीह पर पेशन गोई। खुदा ने दानियल नबी की जुबानी कहलवाया, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए। दानियल 9 बाब 24 आयत। इन सालों के 70 हफ्तों को 3 जमानों में तकसीम किया गया। और आखिरी हफ्ता का मतलब अंजाम के करीब वाले 7 साल है, क्योंकि ये नबूवत तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए है। ये इसराइल और शहर मुकद्दस के साथ आखिरी 7 सालों के लिए खुदा का वादा है। मत्ती 24 बाब 15 आयत। पस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, आखिरी 7 सालों में खुदा एक बार फिर इसराइल के साथ अब्राहम से किए वादा की तौसीक करेगा। खुदा इसराइल के साथ क्यों अपने अहद की तजदीद करेगा? वो इसलिए कि उस जमाना में इसराइल पर बहुत जुल्मो जबर होगा और उनके ईमान पर बहुत शदीद आजमाइशें डाली जाएंगी। मुखालफे मसीह शदीद जुल्म तशद्दद की राह से इसराइल की तरफ से मुकद्दस हैकल में की जाने वाली सारी इबादतें रुकवा देगा। दानियल 9 बाब 27 आयत। और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक के बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी। चुनांचे खुदा इसराइल की हौसला अफजाई करता रहेगा कि वो आखिर तक सच्चाई पर कायम रहें, क्योंकि यसू की आमद जल्द होगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़े होगी। यसू का वादा है वो सारा तैश मुखालिफ पर उंडेल देगा। यसू जानता है दुनिया के अंजाम के करीब उसके बच्चों पर क्या क्या मुसाइब टूटेंगे। मत्ती 24 बाब 9 आयत। उस वक्त लोग तुमको ईजा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी।
मत्ती 10 बाब 22 आयत। और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। मत्ती 24 बाब 21 से 22 आयत। क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। ईमान की मजबूती का ये बड़ा इम्तिहान सिर्फ इसराइल के लिए ही नहीं, बल्कि अब्राहम के खुदा पर ईमान रखने वाले तमाम मसीहियों के लिए भी है। यसू ने फरमाया, आखिरी 7 सालों में वो अपने अहद को सच साबित कर देगा, और चूंकि खुदा ने तबाही बर्बादी की हदें मुकर्रर कर रखी हैं, चुनाचे ईमानदारों पर लाजम है कि पूरी मजबूती से हक पर डटे रहें। यसू ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था कि एक पहलू तो ये है कि यसू पर ईमान रखने वाले खूब जानते हैं कि जो कुछ भी होता है वो सब खुदा की कुदरत और कुव्वत के इख्तियार में है। दूसरा पहलू ये कि हमें खुद भी खूब मुहतात रहकर तबाही से बचकर चलना होगा। पेशनगोई आखिरी दिनों दुनिया में क्या कुछ रूनमा होगा। यसू ने हमें हदायत कर दी कि मुखालफे मसीह के जाहिर होने पर हमें क्या करना होगा। अंजाम के करीब यहूदिया में अफरा तफरी और बेचैनी की इतला। मरकज 13 बाब 14 से 20 आयत। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना रवा नहीं, उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को ना नीचे उतरे ना अंदर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे, मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, और दुआ करो कि ये जाड़ों में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि खलकत के शुरू से जिसे खुदा ने खलक किया ना अब तक हुई है ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातिर जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। बच्चों, ये तो बहुत ही खौफनाक बात हुई। यसू ने फरमाया, जब तुम मुखालफे मसीह को हैकल के अंदर खुदा के तख्त पर बैठा और खुदा की तरह दुनिया के लोगों से इबादत करवाते देखो, तब जो लोग यहूदिया में हो उन पर लाजिम है कि पहाड़ों की तरफ भाग निकले। बच्चों, क्या ये तंबीह भी यरूशलेम की बर्बादी पर की गई तंबीह जैसी है? जब यरूशलेम का मुहासरा किया जाएगा, ये उसकी बर्बादी का वक्त होगा। उस वक्त जो लोग यरूशलेम से बाहर हों उन्हें किसी सूरत शहर में दाखिल नहीं होना, क्योंकि यसू ने पहले ही सारे खौफनाक खतरात से आगाह कर दिया था। बिल्कुल उसी तरह यसू वाज़े तौर पर जानता था, जब मुखालफे मसीह हैकल में विराजमान हो जाएगा और लोगों से अपनी इबादत करवाएगा तो हालात कैसी बुरी डगर पर चल निकलेंगे।
इसी लिए यसू ने यहूदिया में बसने वालों, घरों में बैठे लोगों, खेतों और देहात में मौजूद अफराद यानी सबको खबरदार कर दिया कि खतरात से बचने के लिए उन्हें क्या करना होगा। खुदा मुखालफे मसीह को मार डालेगा खुदा का कहना था, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़े होगी। चुनांचे खुदा चाहता है कि ऐसे वक्त ईमानदार उस जगह से दूर हट जाएं। अगर लोग खुदा की तंबीह पर ईमान रखेंगे, उसका खौफ मानेंगे, तब इस तबाही से बच सकेंगे। बिल्कुल यरूशलेम की बर्बादी के वक़्त की तरह, जब यसू की हदायत पर अमल करने वाले तबाही की जद में आने वाले मकाम से दूर भागकर अपनी जानें बचा लेंगे। बच्चों, यसू ने फरमाया, आखिरी दिनों के करीब हर तरफ जंग ही जंग होगी, जलजले होंगे, कहत होंगे, और मसीहियों को अजियतें दी जाएंगी। यहाँ तक के ईमानदारों को यसू के नाम पर कत्ल किया जाएगा। मगर नजात की खुशखबरी बहरहाल दुनिया में हर समत फैलाई जाएगी। उसी दौर में झूठे नबी और झूठे मसीह उभरेंगे और खुदा के लोगों को बहकाने लगेंगे। यीशु ने उन पर यकीन करने से मना किया। ऐसे में मुखालफे मसीह भी नमूदार हो जाएगा, जो अपने आप को खुदा ठहराएगा और हैकल में खुदा की जगह विराजमान हो जाएगा। तब इतनी बड़ी तबाही बर्पा होगी जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। चुनांचे हमें वहां से लाजमी निकल भागना होगा। फिर भी खुदा अपने मुंतखब लोगों की खातिर तबाही के इन दिनों को जल्द हटा देगा। बच्चों, क्या ख्याल है तब यसू आन पहुंचेगा? पेशन गोई, खुदा के मुंतखब लोग हर समत से इकट्ठे किए जाएंगे। जब दुनिया जंगों, जलजलों और कुदरती आफात के दौर से गुजरेगी, तो ऐसे में यसू ने एक शानदार काम का वादा किया। वो ये कि यसू दुनिया भर में बिखरे इसराइलियों को वादा के उस मुल्क में वापस इकट्ठा करेगा जो खुदा ने अब्राहम और उसकी नस्लों को दिया था। मरकस 13 बाब 27 से 29 आयत। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगजीदों को जमीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अब इंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जूं ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। बच्चों, जलजलों, जंगों, कहत, झूठे नबियों, झूठे मसीहों और मुखालफे मसीह के ज़हूर के अलावा एक और निशान भी जाहिर होगा। यसू ने फरमाया, उसकी दोबारा आमद से पहले एक नहायत अहम इंतजाम किया जाएगा। वो ये कि इसराइली वापस अपने मुल्क लौट आएंगे। वो फिर एक कौम बन जाएंगे, जिस तरह शाखों से पत्ते निकल आते हैं और वो फिर से हरी भरी हो जाती है। बच्चों, खुदा ने जब दुनिया बनाई उसी वक्त उसने सूरज, चांद और सितारों के लिए आसमान पर उनके ठिकाने
اور ان کے مدار مقرر کر دیے۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ پیدائش 1 باب 14 آیت۔ یعنی خدا نے آسمان پر زبردست کیفیت پیدا کر کے لوگوں پر اپنے منصوبے ظاہر کر دیے، تاکہ وہ سوچیں بالکل یسوع کی پیدائش کی گھڑیوں کی طرح۔ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ دنیا کے آخری دنوں میں ایسا کیا ہوگا جس کے نشان خدا سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعہ ظاہر کرے گا؟ آخری دنوں میں آسمان پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کی پیشن گوئی۔ آسمان پر رونما ہونے والے مناظر۔ متی 24 باب 29 آیت۔ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ لوکا 21 باب 25 سے 26 آیت۔ اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ لوکا 21 باب 28 آیت۔ اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ بچوں، دنیا کے آخر میں خوفناک زلزلے، سمندری طوفان، آسمان سے پتھروں کی برسات ہوگی، زمین ہلا ڈالی جائے گی۔ خدا کی طرف سے مقرر ان قدرتی آفات کے علاوہ دنیا جوہری جنگوں میں ملوث ہو جائے گی۔ بچوں، کیا آپ کو یہ پیشن گوئی یاد ہے؟ یوئیل 2 باب 30 سے 31 آیت۔ اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے گا۔ بچوں، اگرچہ بائبل میں مسیح کی آمد کی پیشن گوئیاں کی گئیں اور دنیا کے آخری دنوں کے حالات کا منظر بھی بار بار بیان کیا گیا، مگر کیا لوگ ان باتوں پر یقین کریں گے؟ کیا ان حالات کے پس منظر میں خدا کا خوف مانا جائے گا؟ اگرچہ بائبل کے ذریعہ یسوع نے دنیا کے آخر کی منظر کشی کر دی، مگر اکثریت نے یسوع کی تنبیہ پر نہ تو کان دھرے اور نہ ہی کبھی یقین کیا۔ زیادہ تر لوگوں نے یسوع کی تنبیہ کو مذاق سمجھا۔ چنانچہ آخری دنوں زلزلے آئیں گے، قحط اور بدحالی بدترین شکل میں ڈھل جائے گی، آسمان پر عجیب نشان ظاہر ہوں گے،
बहुत से झूठे नबी और झूठे मसीह लोगों को गुमराह करेंगे। यहाँ तक के मुखालफे मसीह नमूदार होगा और हैकल में खुदा की जगह चढ़ बैठेगा। यसूह के हजूर जोर आजमाई करेगा और अपने आप को खुदा कहेगा। हद ये कि ऐसे वक्त में भी लोग बाइबल में की गई पेशन गोइयों पर यकीन नहीं करेंगे और ना ही यसूह पर आस लगाएंगे। बिल्कुल उन यहूदियों की तरह जिन्हें यसूह ने खबरदार करते हुए कहा था। जब यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो भाग निकलना। मगर उन्होंने यसूह की बात नहीं मानी थी। उस वक्त बहुत से यहूदी ईदे फसा मनाने शहर मुकद्दस में घुसते चले गए। उन्होंने यसूह के नसीहत आमेज कलाम की हकारत की। चुनांचे सब के सब शहर में फंसकर जाने गंवा बैठे। दुनिया के आखिर में भी यही होगा। बहुत से लोग यसूह पर यकीन नहीं करेंगे। उस वक्त भी वो अपने ही रोजो शब की तरजीहात के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहेंगे। उनके दिल खौफे खुदा से खाली रहेंगे। वो यसूह की हदायत को हकारत की नजर से देखेंगे। चुनांचे नागहां यीशु आ पहुंचेगा। हमने पहले पढ़ा था यसूह इंसानों की अदालत करने आएगा। ये बात बिल्कुल नूह के जमाना की तरह होगी। जब वो कश्ती बना रहा था तो लोगों को मतवातर खबरदार करता रहा कि खुदा दुनिया को सैलाब के जरिया बर्बाद कर डालने को है। उस जमाना के लोगों ने नूह का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ ना किया। जब उन्होंने खुदा की तंबी को हकीर जाना तो जिस खुदा पर ठट्ठा लगाते रहे उसी के हाथों में जाने भी सौंप देनी पड़ी। सदूम में भी जहाँ लूत रहता था यही हुआ। शहर के लोग अपनी ख्वाहिशात में डूबे गुनाहों भरी जिंदगी में खोए रहे। यकायक आसमान से आग बरसी और सबको बर्बाद कर गई। हमें उस मुजरम से भी कुछ सीखना चाहिए जिसे यसूह के साथ मसलूब किया गया। दूसरों की तरह यसूह का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि मौका से फायदा उठाते हुए यसूह से माफी का तलबगार हुआ। बच्चों, अगर एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताने लग जाए तो दोनों गड्ढे में जा पड़ेंगे क्योंकि दोनों ही अंधे थे। अगर हम दुनिया के अंजाम के मुतल्लक यसूह की पेशन गोइयों पर यकीन कर लें तो वक्त आते ही फौरन खुदा के अहकाम और यसूह की आमद के निशान हमारे जहनों में उजागर हो जाएंगे। यूं हमारे लिए इन पेशन गोइयों का सहारा लेकर अपने कदमों पर मजबूती से कायम रहना मुमकिन हो जाएगा। बच्चों, अंजाम का ये वक्त कब आएगा? अंजाम यसूह की आमद के बाद वाक़ई होगा। यसूह पर ईमान रखने वाले तमाम लोगों को यसूह बादलों में उठा लेगा। यसूह पर ईमान रखने वाले जो लोग मर चुके हैं पहले वो उठाए जाएंगे और जो उस वक्त अभी जिंदा होंगे उनके बदन तब्दील हो जाएंगे। तब वो भी हवा में उठ जाएंगे। पेशन गोई ईमानदार यकायक जमीन से उठा लिए जाएंगे। लोका 17 बाब 34 से 35 आयत। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दो औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। लोका 17 बाब 37 आयत। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावंद, ये कहाँ होगा? आह, उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे। बच्चों, यीशु ने फरमाया, जब हम हवा में तैरते गिद्ध देखते हैं तो समझ जाते हैं आस पास कहीं कोई मुर्दा बदन मौजूद है जिसे खाने ये गिद्ध जमा हुए। इसी तरह जब माहौल में लाशें पड़ी मिलें तो समझ जाएं कि अब यहाँ गिद्ध भी जरूर आएंगे। ये किसी भी मामला के दो लाजम पहलू हैं। यीशु ने यहूदी अंदाज से मिसाल देते हुए समझाया, यानी अगर ऐसे हुआ तो वैसे भी होगा, और अगर वैसे हुआ तो ऐसे भी जरूर होगा। चुनांचे जब लोग गायब होना शुरू हो जाएं, इसका मतलब होगा यसू आन पहुंचा है। और जो गायब हो गए उनके मुतल्लक समझ लिया जाए कि यसू ने उन्हें हवा में उठा लिया। बच्चों, खुदा की नजर में सिर्फ दो किस्मों के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो जिन्होंने यीशु की हयात पाई है, और दूसरे वो जो यीशु की हयात से महरूम हैं। तब वो कौन से लोग हैं जो हवा में उठा लिए जाएंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने यसू की हयात पाई, यीशु से मोहब्बत रखने वाले, और उसके हुक्मों की पैरवी करने वाले लोग। दूसरी किस्म के लोगों को जमीन पर रहने दिया जाएगा, चाहे वो कितने ही दौलतमंद हों, कितने ही खूबसूरत और मुआशरा में नहायत ही मुअज़्ज़िज़ क्यों ना हो। बच्चों, यसू पर ईमान रखने वाले लोग हवा में जाकर क्या करेंगे? ये वो वक्त होगा जब दुल्हा अपनी दुल्हन से शादी करेगा। दुल्हा? ये दुल्हा कौन है? बच्चों, क्या आपको याद है हमने पुराने अहदनामा में गजलुल गजलात का मुतालिया किया था, जबकि गजलुल गजलात एक मर्द और एक औरत के दरमियान प्यार की एक दास्तान लगती है। इस दास्तान का असल दुल्हा यसू है। और वो सब लोग जिन्होंने यीशु की हयात पाई उसकी दुल्हन हैं। जो लोग यसू पर ईमान रखते उसके साथ गहरे करीबी रिश्ता में बंधे हैं, वो हवा में ऊपर उठकर बर्रा की शादी की दावत में शरीक होंगे। मुकाशफा 19 बाब 7 और 9 आयत। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की जियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। यकीनन हम नहीं जानते यीशु कब ईमानदारों को ऊपर हवा में उठाएगा, मगर यीशु ने वादा फरमाया कि जो लोग मजबूत कदमों से आखिर तक ईमान पर कायम रहेंगे वो मौत से बच जाएंगे। बर्रा की शादी की दावत
और आसमान की बादशाही में शिरकत के लिए जुस्तजू तो करनी होगी। बच्चों, हम सब यसू की जल्द आमद की तवक्का रखते हैं। लेकिन अगर हम यसू की आमद पर ऊपर उठा लिए जाने वालों के बरक्स जमीन पर ही छोड़ दिए गए, तब हम रोते बसोरते और दांत पीसते रह जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब यही होगा हम बरा की शादी की दावत में मदऊ नहीं किए गए। हम खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। अब हमारी रूहें अथाह घड़े में फेंक दी जाएंगी, जहाँ जलती गंधक की झील में हमेशा हमेशा की अजियत हमारा मुकद्दर होगी। चुनांचे बच्चों, हम पर लाजिम है कि यसू की तंबीह पर खूब संजीदगी से ध्यान दें, क्योंकि यसू की दुनियावी पैदाइश का मकसद हमारे लिए नजात की तकमील था। वो हम इंसानों के गुनाह की वजह से हमारी मौत के बदले अपनी जान मौत के लिए पेश करने की खातिर खुदा का ममसू फसा का बर्रा बन गया। क्योंकि यसू ने हमारी खातिर अपनी जान पेश करके मौत को ज़ेर कर दिया। इसीलिए यसू उम्मीद करता है कि हर जान आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाए। मगर यसू के अपने कुछ असूल हैं। अगर हम बर्रा की शादी में शरीक होना चाहते हों, अबदी हयात की तलब रखते हों, तब हमें यसू से गहरा ताल्लुक जोड़ना होगा और संजीदगी से वो सब कुछ करना होगा जो यसू हमसे चाहता है। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, मेरा ख्याल है दुनिया के आखिरी दिनों में हालात बहुत ही उलझ कर रह जाएंगे। झूठे नबी वारद होंगे, झूठे मसीह जाहिर होंगे और फिर मुखालिफे मसीह भी आ चमकेगा। सूरज तारीक हो जाएगा, चांद रोशनी ना देगा, ईमानदार हवा में उठ जाएंगे, जहां बरा की शादी की दावत का एहतमाम होगा। बहुत खूब प्यारे आसमानी बाप, मेरे छोटे से दिमाग में ये सारी बातें कैसे समाए? एक के बाद दूसरा मरहला आखिर कैसे आएगा? मगर मैंने यसू की पेशन गोइयां भी सुन ली हैं। यसू ने हमें वक्त से पहले बता दिया है ताकि हम खूब चौकस हो जाएं, आने वाले हालात का सामना करने की तैयारी कर लें। हम इस तबाही से बच भी सकते हैं और नुकसान की बजाय बरकतें पा सकते हैं। प्यारे बाप, मेहरबानी से मेरी रूह की आंखें खोल दे, मेरी मदद फरमा के उम्र में इजाफा के साथ साथ तेरी वो बातें भी समझ लूं जो दुनिया के अंजाम के करीब वाक़े होंगी। मेरी मदद फरमा के अक्लमंद कवारियों का तर्ज़े अमल अपनाऊं जो तेरे इस्तकबाल और बर्रा की शादी की दावत में शिरकत को हर दम तैयार रहती है। प्यारे आसमानी बाप, मेरे किरदार की खताओं से मुझे आगाह कर दे, अपनी पाक रूह से मेरे वजूद में उजाला कर दे और यसू की हयात से मालामाल कर दे। प्यारे आसमानी बाप, मैं ये तो नहीं चाहता
जब यीशु आए तो दूसरों को ऊपर हवा में जाते खड़ा देखता रहूं और खुद जमीन पर ही रह जाऊं। मैं नहीं चाहता यीशु मुझसे कह दे वो मुझे जानता भी नहीं। प्यारे आसमानी बाप, ये कितनी अलमनाक बात होगी। मैं यीशु की शादी की दावत में शरीक होना चाहता हूँ। अंधेरे कुएं में जाना नहीं चाहता, जहाँ रोने और दांत पीसने के अलावा कुछ भी ना हो। प्यारे आसमानी बाप, मुझे ऐसा बना दे कि यीशु पर ईमान में मजबूत खड़ा हो जाऊं। मुझे ईमान की कुव्वत दे। यीशु की खुशी और उसकी उम्मीद पर कायम कर दे। मुझे खास तौर पर उस वक्त के लिए मजबूती और हिम्मत दे जब यीशु के नाम की वजह से मेरा तमस्खुर उड़ाया जाए, अज़ियतों का निशाना बनाया जाए या नाजायज तौर पर मुकदमों में घसीटा जाए, ताकि मैं उन लोगों के लिए भी दुआएं करूं जो मुझे पसंद नहीं आते और जो मुझे पसंद नहीं करते। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा के जब लोग मुझ पर हंसे, मेरी हकारत करें, तो कहीं मायूस होकर तेरे नाम से किनारा ही ना कर लूं। मेहरबानी से यीशु जैसा बनने में मेरी मदद फरमा, जो तेरा फजल मांगता रहा, तेरी हजूरी में चलता रहा, तेरी बरकतों और तेरे रहम का तलबगार रहा, यहाँ तक कि यीशु की आमद का दिन आ पहुँचे और मुझे बचा ले जाए। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा